Shivansh, you are referring to maybe this question. Are you? Yes, yes, sir. Okay. So I said, see, finally I got k as, finally I got k as n plus 1 minus 2450 upon 4. Understand this? पहली बात तो मेरे को n की ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी शिवांश. आई हैव टू टेक सच वैल्यू ऑफ n जिसको मल्टीप्लाई करके डिफरेंस करने के बाद वो 4 से डिविजिबल हो. पॉइंट नंबर 1, रिस्ट्रिक्शन नंबर 1. रिस्ट्रिक्शन नंबर 2 इज कि ये सारा प्रोसेस करने के बाद जो k की वैल्यू आएगी that has to lie somewhere between 0, 1, 2 or 9 because it is an integer type question and it is mentioned in the question paper that it is value lies between 0 and 9. Okay. So this is what, these are the two compulsions. Okay. Good enough. Right. So now Shivansh, you try out different values of n. आप इंश्योर करिए के 0 से 9 के बियॉन्ड रेंज में ना जाए. अग्री? तो केवल आपको 25 एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जब आपको प्लग करने में ये 4 से डिविजिबल आएगा. आपने ट्राई किया इसको या आपका सजेशन क्या है? लेकिन सर 25 into 26 से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 650. 25 and 26 मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 650. ओके. लेट तो अगर 50 रखेंगे सर हम लोग. हाँ. तो सर जो आपने आगे से लिखा है Yes. Oh, I'm so sorry. It should very correct you are. See, compulsions वही होनी चाहिए. बिल्कुल सही बात कह रहे हो तुम. I'm so sorry. I wrote it wrongly, I guess. Sometimes you speak something and write something. Very correct. I got your point. So the difference between us is not कि कहते हैं ये दोनों ऑब्लिगेशन तुम नहीं समझ रहे थे कि this should come out to be multiple of 4 and this should come out to be 0 to 9. The difference was that I spoke differently and wrote differently or something like that. Yes, you are correct, dear. N should be 50 so that k comes out to be this. Very correct. Thanks for correction, Shivansh. Can we proceed to new discussion now? Yes, sir. Okay, that's great. Good correction, Shivansh. I made a mistake and several times I may make mistake in calculations. It happens with me, you know. I am not very good at calculations. So you need to focus it and you need to get to suggest the correction in between, right? Whenever we make mistake collectively, right? Okay, so let me proceed to further discussion. This is where we were taking questions on arithmetic progression, and we have talked about the nth term and addition of arithmetic progression. Now there is a small issue that I proceed to and then I go further and talk about geometric progression. So let me go over to a small discussion which is left out in arithmetic progression. So further in arithmetic progression we need to talk about what is known as arithmetic mean. What is arithmetic mean? It is so simple. I'll discuss in 3 segments, you know. The first segment of this discussion would be, can I write in short arithmetic mean as AM? It is such a long name, so every time I have to write arithmetic mean, so I'll write AM, you know. So AM of 2 numbers. What is the arithmetic mean of 2 numbers? It is so convenient. Let's say there are 2 numbers A and B that is granted to me. They could be anything, they could be positive, they could be negative, they could be anything, decimal, fraction, whatever. Let's say their arithmetic mean is equal to A. What is A? I want to compute A. So idea is very simple. The arithmetic mean is such a number, when placed between the 2 numbers, they come out to be in arithmetic progression. Meaning to say that
ए और बी के बीच में जब मैं इस ए को इंसर्ट करूंगा, ए और बी के बीच में जब मैं ए को इंसर्ट करूंगा, दे शुड कम आउट टू बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन इट विल बी टाइटल्ड एज अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन तब कहलाएगा जब ए को अगर ए और बी के बीच में डालें, दो नंबर के बीच में डालें, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाए। तो फाइंडिंग इज सो सिंपल। अगर ये एपी में है तो दे मस्ट हैव अ कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स ए माइनस ए, प्रिसीडिंग टर्म माइनस subsequent term minus preceding term, that is succeeding term minus preceding term is a better word, should be equal to should be same in all the cases. So a minus small a is equal to b minus capital A. Am I correct or not? This minus this, what I mean to say is this minus this should be equal to this minus this. और दोनों क्या होने चाहिए? कॉमन डिफरेंस के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में? तो इसीलिए मैंने कहा कि दिस शुड बी दिस, meaning thereby pull out this a over here and 2a is equal to a plus b, and thus the arithmetic mean of two number is a plus b by 2. As simple as that. So जो आप एवरेज बोला करते थे अभी तक, अब एवरेज बोला करते हैं ना, एवरेज ऑफ टू नंबर्स। अगर आपके मैथ्स में सर्टेन मार्क्स आए, फिजिक्स में सर्टेन मार्क्स आए, किसी ने पूछा आपके एवरेज मार्क्स कितने हैं 100 में, तो आप दोनों मार्क्स ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं कि नहीं? वी कॉल इट एवरेज इन स्टैटिस्टिक्स, right? So the same thing technically is called arithmetic mean, but it is not all. What I want is now arithmetic mean of more than two numbers. अगर more than two numbers हो तो am of more than two numbers. am of more than two numbers. If I can write it neatly, see, I am not invoking AP now. What I'll do is I will continue with the same kind of structure. दो नंबर का अरिथमेटिक मीन, दोनों का सम डिवाइड बाय 2 था, तो लेट्स से देयर आर n नंबर विच आर गिवन टू बी, नंबर्स क्या क्या दिए मेरे को, देयर n नंबर्स विच आर गिवन टू मी, एंड दे आर नथिंग बट a1 a2 a3, दे आर नॉट इन AP एंड ऑल, डोंट थिंक वो कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, बट दे आर मियर नंबर्स, वो केवल नंबर्स हैं और वो मेरे को दिए हुए हैं, एंड व्हाट आई रिक्वायर इज देयर अरिथमेटिक मीन। तो व्हाट शुड आई डू? तो आइडिया इज वेरी सिंपल कि जैसे आप स्टैटिस्टिक्स में एवरेज निकालते थे, क्योंकि अरिथमेटिक मीन एवरेज होता है, तो इस फिलॉसफी को एक्सटेंड करते हुए मैंने कहा इन दिस केस द अरिथमेटिक मीन ए वुड बी नथिंग बट इक्वल टू a1 plus a2 plus a3 down to an upon n. Right? That means same structure has been continued कि अगर दो का है तो दोनों का सम डिवाइड बाई 2, तीन का होगा तो तीनों का सम डिवाइड बाई 3, 4 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन होगा तो all 4, sum of all 4 divide by 4, and so on and so forth. So this is how I get the arithmetic mean of more than two numbers. Okay, and the third and the main issue which I want to bring in over here is, the third issue is inserting an arithmetic mean between two numbers. Inserting an arithmetic mean between two numbers. Now, this is important. Why? Look at that. It can be taken as a quotient, but fine. Idea is that, check out, that I have two numbers A and B. A and B, they could be any two number, negative, positive, fraction, decimal, कुछ भी हो,
कुछ भी हो। मेरे को कहा गया कि आप इसके बीच में एक नहीं n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करिए। कहने का मतलब ये है कि मेरे को a और b के बीच में a1, a2, a3, a4, an, b। कैन यू सी दैट? ये मेरा a है, ये मेरा सॉरी ये मेरा a है, ये b है, और उसके बीच में मेरे को n अर्थमेटिक मीन, एक नहीं n arithmetic mean insert करने हैं। What do I mean by inserting n arithmetic mean? What I mean by inserting n arithmetic mean is कि जब मैं ये n numbers बीच में लिखूं, let me change the color so that it is distinct and it is very clear कि they have been inserted. A1, A2, A3 and AN. Sure? तो ए और बी के बीच में मैंने जो n नंबर इंसर्ट किए हैं वो ऐसे हैं, कम टू थिंक ऑफ इट, वो ऐसे हैं कि मैं जब इनको इंसर्ट करूं तो पूरा प्रोग्रेशन एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो आप देखिए अगर n मीन्स इंसर्ट करेंगे तो कितने टर्म्स हो जाएंगे इसमें? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? टेल मी। एब्सोल्युटली करेक्ट। नंबर ऑफ टर्म्स आर Number of terms are n plus 2. Very good. Number of terms is equal to n plus 2. That means जो b है मेरा वो क्या है? b जो है मेरा वो क्या है? वो tn plus 2 है। वो क्या है? tn plus 2 है कि नहीं है? इस b। और बताइए फर्स्ट टर्म क्या है? ए है कि नहीं है? तो बताइए nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म का फॉर्मूला होता है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। बोलिए अग्री और नॉट? होता है ना? तो ये बताइए tn प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा? tn प्लस 2 बराबर हो जाएगा a प्लस n प्लस 2 माइनस 1, n प्लस 2 माइनस 1। भाई n की जगह मैंने n प्लस 2 डाल दिया। बोलिए अग्री और नॉट? इंटू डी। एम आई करेक्ट और नॉट? राइट। So I solve for common difference. I solve for common difference implies that you can see that n plus 1 into common difference is equal to b minus a. So common difference comes out to be b minus a upon n plus 1. Good, good. अब finding them is not difficult task at all. Finding them is not difficult task at all. क्यों भाई? अब a1 क्या हो जाएगा? बोलिए a1 हो जाएगा a plus d, a plus d तो कितना हो जाएगा? a प्लस बी माइनस ए अपॉन एन माइनस 1। बोलिए हाँ है ना? a2 क्या हो जाएगी? इसे निकालते चलेंगे। इन जनरल बता देते हैं आपको, अगर कोई पूछे केथ अर्थमेटिक मीन क्या होगा? केथ, केथ जो के होगा मतलब n से छोटा है, मानी बात है, यहाँ कहीं यहाँ पे एक होगा कोई, यहाँ पे एक कोई होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? जो 1 और n के बीच में होगा। तो कोई कहे कि केथ अर्थमेटिक मीन क्या होगा? तो देखिए भाई केथ अर्थमेटिक मीन में कॉमन डिफरेंस कितनी बार ऐड होगा? k माइनस 1 बार और ऐड होगा कि नहीं? बोलिए अग्री और नॉट? तो विल इट बी a प्लस k माइनस 1 इंटू डी और नॉट? क्योंकि ये kth, ओ नो k टाइम्स होगा। ओ हो kth अरिथमेटिक मीन वुड बी tk प्लस 1 और नॉट? कितने लोग समझ गए इस बात को? बोलिए हाँ। क्योंकि फर्स्ट टर्म इज a, सेकंड टर्म इज a1, तो kth अरिथमेटिक मीन k प्लस 1 टर्म होगा कि नहीं होगा? आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? सबको ये बात समझ में आ रही है? देखिए भाई फर्स्ट टर्म क्या है? वो a है इस एपी का, सेकंड टर्म a1 है, सेकंड टर्म a1 है, थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म क्या है? a2, फोर्थ टर्म a3। तो एक क्या होगा? k प्लस 1 टर्म होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो दैट्स वाई इट विल बी इक्वल टू a प्लस k इंटू डी। दैट्स वाई ये होगा मेरा। तो इन जनरल आई कैन राइट इट एज, एक फॉर्मूला मेरा बन गया कि kth arithmetic mean is nothing but a plus k times of b minus a upon n plus 1 plus 1 plus 1. Am I correct? So this becomes a formula for inserted means. कभी कभी कई मीन इंसर्ट करने पड़ते हैं मेरे को if need be. Have you all understood that? किसी को कोई डाउट? हाँ बोलिए। सर एक बार सर रिपीट कर दीजिए। यहां से
जब एक एयर लिखा है मैंने कि पहले? तो थोड़ा पहले से सर। ओके, चलिए मैं पूरा रिपीट कर देता हूं। देखिए, मेरे को ए और बी के बीच में के ए और बी के बीच में मेरे को एन अर्थमेटिक मीन डालने थे, एन अर्थमेटिक मीन। जब मैंने एन अर्थमेटिक मीन डाले और उनको डालने के बाद मैं क्लेम मेरा ये है कि ए और बी को इंक्लूड करके वो एन मीन भी बीच में पड़े हुए हैं, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डेवलप होती है। तो अगर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डेवलप होती है तो सीधी सी बात है भाई कि उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म होंगे? विल दे बी एन प्लस टू टर्म और नॉट? क्योंकि एन मैंने डाले ए और बी। अब एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, तो एन प्लस टू टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? और बी जो है वो एन प्लस टू टर्म होगा कि नहीं होगा? बोलिए, लास्ट टर्म है कि नहीं है एन प्लस टू टर्म? और इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस टर्म नंबर माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है, राइट? तो यहाँ पे डाल दिया एन प्लस टू माइनस वन। अरे भाई, जो मेरा मैं लिख देता हूँ, किसी भी एपी में एन टर्म इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो टर्म का नंबर होता है उससे एक टर्म टाइम्स डी ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं? श्योर और नॉट? एक कम टाइम्स डी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे एन प्लस टू है, यहाँ पे एन प्लस टू है, तो यहाँ पे एन प्लस टू माइनस वन ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए हाँ, है ना, राइट? तो ये मेरा एक इक्वेशन बन गया, इससे मेरे को डी आ गया। अब मेरा क्लेम ये है कि जो पहला मीन है वो कौन सा टर्म है? पहला मीन इज कौन सा टर्म? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, ए प्लस डी तो यही है, पर टर्म टर्म उसका टर्म नंबर क्या है? कौन सा टर्म है वो? सेकेंड। पहला मीन जो है सेकेंड टर्म है। सेकेंड मीन क्या है? सेकेंड मीन पहला मीन जो है सेकेंड टर्म है। सेकेंड मीन क्या है? थर्ड टर्म। थर्ड मीन क्या है? फोर्थ टर्म। तो के मीन क्या होगा? के प्लस वन टर्म होगा कि नहीं होगा? तो के प्लस वन टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस के डी होगा कि नहीं होगा? बोलिए हाँ, है ना? बस ए प्लस के डी लिख दिया। तो दिस इज द केथ मीन। अब के की वैल्यू आप डालते रहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एन तक आपको सारे इंसर्टेड मीन्स जो इंसर्ट किए हैं हमने वो सारे मिलते रहेंगे एक एक करके। इसीलिए इसका नाम रखा इंसर्टेड, कि हमने जबरदस्ती इसमें इंसर्ट किए हैं मीन एन। श्योर और नॉट? तो दिस इज व्हाट आई मीन बाय इंसर्टेड मीन। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दैट? Okay, that's great. That's great. Now we have the topic geometric progression. हाँ बेटा बताइए। वो तो अभी तक वही तो ले रहे थे, मीन मीन के बेसिस पे। मीन के बेसिस पे क्वेश्चन तब ले पाएंगे जब अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों पढ़ लेंगे। तो उसमें इनइक्वालिटीज होती हैं जो क्वेश्चंस आते हैं, तो तीनों मीन जब हो जाएंगे तब तीनों मीन को इंक्लूड करके क्वेश्चंस बनेंगे बेटा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? लेट मी डील ऑल द टॉपिक। जब सारे तीनों मीन पढ़ लेंगे आप, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, तो देयर विल बी ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेस्ड अपॉन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री मीन्स। सिंगल टाइप क्वेश्चन देन ओनली आई टेक। मीन पे क्वेश्चन मैं बाद में लूंगा, अभी इसलिए इंट्रोड्यूस कर दिया क्योंकि दे आर रिलेटेड टू एपी। बट वंस आई गो टू ऑल डील विद ऑल द मीन, आई टेक ऑल द क्वेश्चन रिलेटिंग टू मीन्स, यू नो। How do I define a geometric progression? If the ratio of any two consecutive terms of a progression is constant, then the progression is known as geometric progression.
and I don't pull the full stop, and the constant ratio normally denoted by letter R. Normally denoted by letter R is called common ratio. Sure. So how do you develop a geometric progression? It is so comfortable to. That means every other term is multiplied by R. Alternative interpretation would be, so if I call the first term as, अगर मैं first term को मैं कहूँ T1 which is A और कॉमन रेशियो को मैं कहूँ R, तो दीज आर, जैसे उसमें A and D वैसे इसमें A and R. तो GP would be very comfortable to get, you know. तो GP क्या होगा? तो GP would be nothing but very simple, right? A, comma, AR, comma, AR square, comma, AR cube, comma, ARS per 4 and so on. Will it be or not? All of you got the point? Basically, हर बार एक R multiply हो जाया करेगा. It will progress in multiplicative manner. Arithmetic progression was progressing in the additive manner. It was progressing in the additive manner, and geometric progression will progress in the multiplicative manner, right? So somebody asked me two pertinent questions. You know what two pertinent questions can be? One is the nth term, other is the sum of the geometric series, you know. So let me talk about the nth term first. So what would be the nth term? तो अगर मेरा फर्स्ट टर्म T1 है एंड कॉमन रेशियो तो GP तो हो गया, तो व्हाट इज द nth term? If I talk about nth term, so can you see that in the first term no R is multiplied, in the second term one time R is multiplied, in the third term 2 times R is multiplied, in the fourth term 3 times R is multiplied. nth term में मानी बात है R raised to the power n minus 1. Could you all appreciate that this n minus 1? क्योंकि first term is, after all, I'm so sorry, the first term is without R, second term is with 1 R multiplied, the third term is with 2 R's multiplied. Could you all appreciate that the nth term would be A R raised power n minus 1 or not? Have you all got the point? Let me elaborate this. Isn't it T1? Isn't it T2? Isn't it T3? Isn't it T4? Isn't it T5? जब मेरे हर टर्म में उससे एक टर्म R की पावर मल्टीप्लाइड है, तो ऑफ कोर्स द nth टर्म इज गोना बी A into R raised to the power n minus 1. Of course it is very comfortable to understand. तो ये तो nth टर्म हो गया. अब सवाल उठता है, हाउ डू आई फाइंड द सम ऑफ देम ऑल? सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स? जैसे एपी में था वैसे मैं यहाँ पे भी पूछूंगा. तो लेट अस से दैट एक ज्योमेट्रिक सीरीज मैं लिख लेता हूँ. आई राइट, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो देखिए ज्योमेट्रिक सीरीज पे स्विच ओवर कर रहे हैं. तो एक ज्योमेट्रिक सीरीज की बात करें अगर हम, एक में अगर ज्योमेट्रिक सीरीज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेशन एंड सीरीज. ज्योमेट्रिक सीरीज की बात करें तो सीरीज में क्या होता है? ऑल द टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन आर कनेक्टेड बाय प्लस साइन बिटवीन देम. तो ज्योमेट्रिक सीरीज की बात करें तो दैट वुड बी, दे ऑल विल बी कनेक्टेड बाय प्लस साइन. तो A plus AR plus AR square plus going on and on up to AR raised power n minus 1. अगर मैं टर्मिनेट करना चाहता हूं इसको, तो अगर मैं इसको टर्मिनेट करना चाहता हूं तो जैसे AP को मैंने टर्मिनेट किया था. अब इसके लिए सिंबल क्या होगा? इसके लिए सिंबल S होगा. आप जानते हैं नॉर्मली हम लोग सिंबल S यूज करते हैं सम के लिए. हाउ डू आई फाइंड द सम? डियर फ्रेंड, देयर इज अ ब्यूटीफुल टेक्निक. There's a beautiful technique to deal with.
हाँ बताएं. So in the last term we will write 8r to the power n minus 1. आई एम सो सॉरी, थैंक्स फॉर करेक्शन. बोला n और लिखा r, कोई बात नहीं. There's a beautiful way of adding them up. How do I add them up? Notice here carefully. What I'm gonna do is, मैं इसको पूरे को r से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं. I am going to multiply it by r, you know. I am going to multiply it with r. तो लिख दिए, कर देते हैं r से मल्टीप्लाई. तो ये LHS क्या हो जाएगा? r इंटू एस हो जाएगा. r इंटू एस हो जाएगा. RHS क्या हो जाएगा? ये AR हो जाएगा. अब मैंने क्या किया, जो मेरे को यहां लिखना था AR, वो यहां ना लिख के मैंने एक प्लेस सबको शिफ्ट कर दिया. एक प्लेस सबको शिफ्ट कर दिया. एक प्लेस सबको शिफ्ट कर दिया. शिफ्ट करने में क्या बुराई है भाई, मेरा मन. मैंने एक प्लेस सबको शिफ्ट कर दिया. तो इसमें जो R मल्टीप्लाई हुआ उसको मैंने AR यहां लिखा. इसमें जो AR मल्टीप्लाई हुआ उसको मैंने AR स्क्वायर यहां लिखा. इसमें जो मल्टीप्लाई हुआ AR क्यूब यहां लिखा मैंने. और इसमें जो मल्टीप्लाई हुआ होगा यहां से वो AR रेज़ पावर n माइनस 1 आया होगा. और ये वाला नेचुरली यहां से यहां चला जाएगा. तो ये वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा AR रेज़ टू द पावर n. एम आई करेक्ट और नॉट? अब मैंने पहली रो से सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब मैंने पहली रो से सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट कर दिया. व्हाट आई डू इज, नोटिस हियर केयरफुली, नोटिस हियर केयरफुली कि मैंने सेकंड रो को पूरा पहली रो से क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया. जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन सब पे लग जाएगा. और आप देखेंगे क्या होगा. व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग. ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल. आई विल बी लेफ्ट आउट विद ओनली टू टर्म्स, एक a और एक AR रेज़ पावर n विद अ माइनस साइन. बोलिए, सबको समझ में आ गई ये बात कि नहीं? ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दैट? हाउ कंफर्टेबल इट इज. कैन यू सी दैट? व्हाट अ ग्रेट मेथड इट इज. बाद में इसको नाम देंगे एक हम, बाद में इसको नाम देंगे डायगोनल कैंसिलेशन. बहुत अच्छा नाम होता है इनका और बहुत से बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे इससे. जब यहाँ पे मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे आया ये 1 माइनस r इंटू एस, यू नो. आई एम लेफ्ट आउट विद a हियर और सब जगह 0 0 0 0 0 0 0. ठीक है ना. और यहां पे आया माइनस AR रेज़ टू द पावर n. एम आई करेक्ट और नॉट? तो needless to say that my 1 minus r into s is gonna be a taken common 1 minus r raised power n, and thus I get sum of the geometric series of n terms is a 1 minus r raised to the power n upon 1 minus r. So this is what is the sum of the series. So now you need to learn these two formulas. The nth term of GP is AR raised power n minus 1, and the sum of n terms is a 1 minus r raised power n upon 1 minus r. Have you all got the point? If you proceed, if you are okay with it, then I can proceed with this. जैसे मेरे एपी में दो फॉर्मूले थे, nth टर्म और एडिशन ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले, वैसे उस पे ही सारे क्वेश्चन बेस्ड है. इफ यू सीन इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आई हैव टेकन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस and you could see that they could be handled by these two formulas, right? And in a similar manner there are lot many things that can be done with the help of these two formulas, that is nth term and the sum of n terms. These are very important milestones, you can say, and we can do wonders with these two formulas. एक एडिशनल बातें मैं जीपी में करूंगा जो एपी में मैंने नहीं किया था. इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट तो आई प्रोसीड फर्दर. कैन आई? ओके ओके. देखिए बेटा कि अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे मेरे से कि सर मान लीजिए अगर R1 से ज्यादा है, तो अगर R1 से ज्यादा है तो कोई बात नहीं भाई, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस कॉमन ले लियो. इसको मैं
Yeah, I can take minus common here, and write a r raised power n minus 1 upon r minus 1. तो दैट इज नॉट एन इश्यू एट ऑल, वो तो छोटी बात है, इसको तो मैं लिखता भी नहीं, मिटा देता हूँ। चलिए अगर लिखना चाहें तो आप लिख लें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर आर मोर देन, मतलब आई मीन यू कैन, इट इज सिंपल जॉब फॉर यू। बट ये बताइए, क्या मेरा आर हमेशा पॉजिटिव होना जरूरी है? नो, नॉट एट ऑल। No, not at all. R could be positive, R could be negative. I may have a GP where common ratio may be -2, something like कि एक GP हो सकती है मेरी, मैं लिख रहा हूँ, मिटा दूंगा, GP जो 3 से, मान लो 3 से स्टार्ट होती है और उसका कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो लेट से -2 है, तो वो GP कितनी होगी, -6, -6, +12, राइट। ऑल्टरनेट करेगी नहीं, -24, +48। Are you getting the point or not? I can have a negative common ratio or positive common ratio. I don't mind. I can have a common ratio which is smaller than 1. I can have a common ratio which is more than 1. But there is a very special significance that we have when the common ratio is numerically weaker than 1. Numerically weaker than 1. So let us say that if my common ratio is, if my R is such that it is lying between what, -1 to 1, आपको ये बात समझ में आ गई, -1 से 1, मतलब -1 से छोटा नहीं है और 1 से बड़ा नहीं है, मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 1 से कम है। न्यूमेरिकल, जब किसी नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं ना, मान लो हमने पूछा व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 6, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 6 इज 6, but what is the numerical value of -8? Numerical value of -8 is 8. तो when I say numerical value, that means साइन को आपको इग्नोर करना है, साइन आपको ध्यान नहीं देना है, केवल उसकी वैल्यू बतानी है, समझ रहे हैं ना। तो जब r की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से कम होगी तो r यहां से यहां तक लाई करेगा कि नहीं करेगा। और इन अदर वर्ड्स मैं लिख सकता हूं क्या, अगर आपको सिंबल पता हो तो मॉडुलस r इज वीकर देन 1 हो। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं सिंबल? मॉडुलस r मतलब कि r का साइन आपने इग्नोर कर दिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए, बोथ आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, आर लाइंग बिटवीन -1 to 1, आप ये लिखिए -1 से r 1 के बीच में लाई कर रहा है, या आप लिखिए कि मॉडुलस आर इज, इसको बोलते हैं मॉडुलस आर, इसको बोलते हैं मॉडुलस आर, चाहे ये कंडीशन लिखिए चाहे ये कंडीशन लिखिए। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा फायदा होता है। क्या फायदा होता है बेटा? तब मैं किसकी बात कर सकता हूं, तब मैं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज की बात कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं बात कर सकता। तब मैं बात कर सकता हूं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज की। ओके, लेट मी राइट दिस। तब मैं बात कर सकता हूं इनफाइनाइट जीपी की बात, ज्योमेट्रिक सीरीज की, नॉट प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीरीज की बात कर सकता हूं। दैट मीन्स आई कैन टॉक अबाउट s इज इक्वल टू 1 प्लस, ओ आई एम सो सॉरी, s इज इक्वल, तब मैं बात कर सकता हूं अगर ये कंडीशन ओबे करे तो नहीं, अदरवाइज नहीं। s इज इक्वल टू a प्लस AR स्क्वेयर। अब मेरे को मजबूरी नहीं है कि मैं AR पर n पे टर्मिनेट करूं, अब मैं इसको इनडेफिनेटली ले जा सकता हूं, कहीं तक भी, यहां तक ले जाने की मजबूरी नहीं है। पहले जब कंडीशन नहीं थी तो मैं यहां पे भाई n टर्म तक लेकर रोक दिया था। अब अगर मेरा ये कॉमन रेशियो की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो आई डोंट हैव दिस ऑब्लिगेशन एंड आई कैन कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग अप टिल इंफिनिटी, अप टिल इंफिनिटी। यू नो, number of terms are how many? Number of terms are how many? Infinite. But you'll be surprised to know that sum is finite. Why sum is finite? Sum is finite because जब मेरा r 1 से वीक होगा, चाहे वो -1 और 1 के बीच में होगा, तब आपको पता है ना कि अगर, अच्छा मानिए सुनिए, अगर हमने कहा व्हाट इज 2 स्क्वायर तो आपने कहा 4, हमने कहा 2 क्यूब तो हमने पूछा आपसे व्हाट इज 2 क्यूब तो आपने कहा इट इज 8, आपने कहा 2 raised power 4, आई एम सो सॉरी, व्हाई आई एम राइटिंग 3 ऑल द टाइम, 2 raised power 4 तो आपने कहा 16। कैन यू सी दैट दे आर ऑल इंक्रीजिंग? व्हाई? बिकॉज द बेस ऑफ द एक्सपोनेंट, जिसको बेस है, जिसकी पावर रेस कर रहे हैं, वो क्या है, वो मोर देन 1 है। पर आप इसी जगह देखिए कि अगर 1/2 की बात करें, 1/2 की बात करें तो 1/2 स्क्वायर इज 1/4, 1/2 क्यूब इज 1/8,
1/2 रेस पावर 4 इज, बोलिए 1/16. कैन यू सी दैट ये घटता ही चला जा रहा है, घटता ही चला जा रहा है, घटता ही चला जा रहा है. जब 1/2 रेस पावर मैं 1 बिलियन करूंगा या 1 मिलियन करूंगा, oh my god, it will almost come down to zero or not? It will almost come down, हाँ, very very close to zero or not? तो आप खुद देखिए, जब ये r की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से वीक होगी तो ये वाला टर्म ऑलमोस्ट जीरो को टेंड करेगा. बोलिए हाँ है ना. r रेस पावर n, तो इसका मतलब क्या होगा, r, राइट. तो मेरा सम जो हो जाएगा s, दैट विल बी नथिंग बट a अपॉन 1 माइनस r. व्हाट अ ब्यूटीफुल सम इट इज. नंबर टर्म मैटर नहीं करेंगे एंड आई विल हैव अ फाइनाइट सम. तो कितनी आयरनी है. लुक एट द आयरनी. द आयरनी इज, if I ask you how many terms are there in this series, so how many terms are there? Infinite. And what is the sum of the series? Sum of the series is finite. This is the irony of infinite GP. So remember that this is a very important condition. This is a very important condition for infinite geometric series to have the meaning. Infinite geometric series की meaning हो, इसके लिए ये बहुत important condition है. अदरवाइज इन्फानाइट ज्योमेट्रिक सीरीज की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते. वी कांट कंसीव इन्फानाइट ज्योमेट्रिक सीरीज अनलेस एंड अनटिल दिस कंडीशन इज ग्रांटेड टू अस, यू नो, राइट. कौन सा? ओके, लेट मी टेल यू, लेट मी elaborate it. I wanted to do it in this space only, that's why the limit, if I can slide it slightly, then of course I will have the comfortable answer, you know, no big deal. चलिए, मेरे पास स्पेस है, अब मैं आपको समझा देता हूँ. ओके, सो कम टू थिंक ऑफ इट, जब मेरा r की न्यूमेरिकल वैल्यू वीकर देन होगी तो r रेस पर n as n is tending to infinity, n जब इनफाइनाइट को टेंड करेगा, इक्वल नहीं, इनफाइनाइटली इक्वल वर्ड नहीं यूज करते, टेंड वर्ड यूज करते हैं. टेंड, TND, टेंडिंग मतलब उसकी तरफ जा रहे हैं. आई एम टेंडिंग टुवर्ड्स यू, दैट मीन्स हम तुम्हारे को अप्रोच कर रहे हैं. जब n इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताइए, जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ है ना. अरे राइट. तो आइए मैं लिखूं, सम क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा बेटा क्या, a 1 माइनस आर रेस पर n अपॉन 1 माइनस आर. अब r रेस पर n किसको टेंड करेगा? इनफाइनाइट टर्म के लिए जीरो को टेंड करेगा, तो इसको जीरो डाल दिया, इसको जीरो डाल दिया, तो क्या आ गया ये a अपॉन 1 माइनस आर और नॉट? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दैट? कोई डाउट? तो दिस इज द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी. तो इसको, इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं बेटा. अगर आप, मतलब वैसे नॉर्मली लिखने की जरूरत नहीं, पर अगर आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. एस इन्फिनिटी, मतलब सब स्क्रिप्ट में इन्फिनिटी इसलिए लिख देते हैं कि इन्फिनाइट जीपी का सम है ये. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एस इन्फिनिटी, एस इज दिस, एस इन्फिनिटी इज दिस. कुड यू ऑल अप्रिशिएट दैट? कोई डाउट? ओके, तो लेट मी प्रोसीड टू द क्वेश्चन वेरी फास्ट. ओके, चलिए करिए इस क्वेश्चन को. Yes. बोलिए. हाँ, कौन? सुदीक्षा, बताइए. ब्यूटिफुल आंसर. 4 raised per 5 is absolutely correct answer. Absolutely correct answer. Very well done. Very well done. Right. Now, let me deal with the issue. देखिए, कितने टर्म का प्रोडक्ट पूछा है?
अंडरलाइन कर दिया मैंने। फर्स्ट 5 टर्म का, 5 टर्म का प्रोडक्ट पूछा है इन्होंने जीपी के, ठीक है ना। और कौन सा टर्म दिया है आपको? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म जो है उन्होंने 4 दे दिया है। थर्ड टर्म इज गिवन टू बी 4। और पूछा क्या है इन्होंने? T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4 इंटू T5, इसकी वैल्यू पूछा है क्या होगी। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? अब आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था व्हाट अ ब्यूटीफुल टेक्निक इट इज एंड इट इज सो ऑफन बीइंग यूज्ड, सो ऑफन बीइंग यूज्ड कि आई अप्रिशिएट दैट टेक्निक लाइक एनीथिंग। आई मीन उसको कितना आप यूज करिए कि मैं क्या बताऊं। चलिए मैं अब थोड़ी सी अपने बैकवर्ड जर्नी करता हूं। बैकवर्ड जर्नी करता हूं, एक बहुत अच्छा, उसको 2-3 बार हमने उस कॉन्सेप्ट को यूज किया था, इसलिए मैं उसको जहां पे पहली बार लिया था वहां मैं जाता हूं और आपसे पहले मैं बात करता हूं उस बारे में। इसकी बात करता हूं, मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं। आपको मैंने बताया था कि क्या कहते हैं कि अगर हमको 4 टर्म एपी में लेने हो, 3 टर्म एपी में लेने हो, तो मैं ऐसी कोशिश करता हूं कि सबका एडिशन कैंसिल हो जाए। तो मैं 4 टर्म यहाँ पे एपी में लेने थे, तो मैंने यहाँ पे 4 टर्म ये नहीं लिए, मैंने 4 टर्म ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d नहीं लिए। आपने देखा था, हमने पीछे और आगे करके लिया था। इसी तरह अगर आप देखें तो मैंने एक और क्वेश्चन में, जो हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, इफ आई रिकॉल करेक्टली, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड थी जो एपी में थी। तो आपने देखा मैंने कैसे लिया, ये मैंने यहाँ पे ये देखिए, जो एपी में 3 साइड थी, मैंने उनको, ये 3 साइड्स एपी में थी, कहा गया था कि साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैंने 3 साइड्स को मैंने ये नहीं लिया, देखिए मैं पिंक से लिख रहा हूं, मैंने ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d नहीं लिया, ना 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 ना। आपने देखा इसको ये नहीं लिया ना, इसको नहीं लिया, बल्कि मैंने क्या लिया, मैंने लिया एक पीछे ए माइनस डी एक साइड, एक और ए प्लस डी एक साइड, ये 3 लिया था कि नहीं लिया था? बोलिए हाँ है ना। व्हाट इज द एडवांटेज? आर दे नॉट इन एपी? अरे भाई कोई किसी ने मेरे ऊपर चाकू थोड़ी ना रखा हुआ है गर्दन पे कि आप पहला टर्म ए ही लीजिए। मैंने पहला टर्म ए माइनस डी ले लिया, उससे फायदा क्या हुआ भाई? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? हर अगला टर्म पिछले टर्म से डी ज्यादा होता है, कॉमन डिफरेंस ज्यादा होता है। तो क्या इससे ये डी ज्यादा है कि नहीं है? क्या मैं वायलेट कर रहा हूं कंडीशन? नहीं। क्या इससे ये डी ज्यादा है कि नहीं है? बिल्कुल है। पर फायदा क्या हुआ ऐसे लिखने से? ऐसे लिखने से फायदा हुआ कि तीनों को सम करेंगे तो डी खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा, तो मेरे कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। इसी तरह मैं आपको यहां सजेस्ट करूंगा, मैं आपको यहां बताऊंगा कि अगर आपको 5 टर्म एपी में लेने हैं तो 5 टर्म एपी में ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब कॉमा ए आर रेज पर 4 नहीं लूंगा। नो 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 नो, आई विल नॉट। मैं इसको बीचों बीच मान के इसके 2 पीछे और 2 आगे ले लूंगा। आप देखिए, इसको लिखा रहने दीजिए, इसको लिखा रहने दीजिए, तभी आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। मैं क्या करूंगा, इसको बीचों बीच ले लूंगा, ए को बीचों बीच ले लूंगा, 2 टर्म पीछे 2 टर्म आगे। तो इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा? ए बाई आर होगा कि नहीं होगा? बोलिए हाँ है ना। सब लोग समझ गए कि नहीं? तभी तो इसमें आर मल्टीप्लाई होकर बनेगा। और इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा? ए बाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बोलिए हाँ है ना, बोलिए हाँ है ना। इसका सक्सीडिंग टर्म ए आर होगा कि नहीं, और इसका सक्सीडिंग टर्म ए आर स्क्वायर होगा कि नहीं। तो ये लेना हमको बहुत अच्छा लग रहा है इसके तुलना में। पिंक के तुलना में मेरे को येलो लेना बहुत अच्छा लग रहा है। द रीजन वेरी वेल अंडरस्टूड बाय यू आई गेस, दैट इज कि अब मैं मल्टीप्लाई करेंगे, सचमुच मल्टीप्लीकेशन पूछा गया है, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आर अपने आप डिसअपियर हो जाएगा। कैन यू ऑल सी दैट? कैन यू ऑल सी दैट? दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर। तो दिस इज व्हाट आई डू। तो मैंने इसको ब्लंटली नहीं लिया, नो 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 नो, ये लिखा रहने देते हैं, और मैंने इसको इसीलिए लिख के क्रॉस भी कर दिया, अ बिग क्रॉस अक्रॉस दिस। ये नॉर्मली बच्चों की टेंडेंसी होगी कि ऐसा लेना, मैं कहूंगा डोंट टेक इट, ये क्रॉस बना दिया। आई प्रेफर दिस। अब ये मेरा क्या है बेटा? ये मेरा T1 है, ये मेरा T1 है कि नहीं? ये T1, ये T2 है, ये T3 है, बोलिए हाँ है ना। ये T4 है, हाँ है ना। ये T5 है, बोलिए। सबका प्रोडक्ट पूछा गया है, सबका प्रोडक्ट पूछा गया है, तो सबका प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा? बोलिए। सबका प्रोडक्ट जो बराबर हो जाएगा यहाँ पे, वो किसके बराबर हो जाएगा? ए बाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई ए बाई आर मल्टीप्लाइड बाई ए
मल्टीप्लाइड बाई ए आर मल्टीप्लाइड बाई, थोड़ा सा आगे और लिखें तो और अच्छा रहेगा. ओके, लेट मी, ओके सॉरी, what do I do? Okay, let me shift it so that I create a space. And ये नहीं लिया ना, ये लिया. Now this is gonna be equal to, what is the first term? First term is a by r square. Second term is, बोलिए 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 बोलिए, a by r. Third term is a. Fourth term is ar. Fifth term is ar square. Can you see that now? What a beauty it is. What a beauty it is. R square gets cancelled out with r square, r cancels out with r, and I simply get this equal to a raised power 5. And what is a? T3, T3, T3. And what is T3? Third term is 4. So isn't it 4 raised power 5? All of you have understood that? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Isn't T3 given to be 4? Isn't T3 given to be 4? Yes, sir. Can we proceed to next question? Yes, sir. Have you taken a note of it? It's a very small question which was asked sometimes in IIT. I don't know the year, but it was sometimes asked in IIT. I wonder when, but पूछा गया था. Okay. Yes. कर लिया आप लोगों ने बेटा? Can you hear me? Can you hear me you all? Yes, sir. And the reason is because I don't have the monitor of what I'm speaking, what I'm writing.
तो आप लोग जब भी कुछ गड़बड़ हो, आवाज या वीडियो में कोई भी एक चीज चली जाए, तो आप तुरंत इन्फॉर्म करिए, वेट ना करिएगा। एक्सेप्ट मैं आपको बता दूं, बीच में जब मैं डेस्कटॉप मोड पे जाता हूं तो थोड़ी देर के लिए आपकी स्क्रीन ब्लैक होती होगी, तो वो तो नॉर्मल प्रोसेस है, दैट इज नॉट एन इश्यू एट ऑल। जब मैं आपको देखना चाहता हूं कि आपके चैट में कुछ लिखा तो नहीं है, तो आई हैव टू मिनिमाइज माई टीचिंग इंटरफेस, तब वो ब्लैक हो जाती है आपकी स्क्रीन, तो दैट इज नॉट एन इश्यू। बट अगर द स्क्रीन डिसअपियर्स और द साउंड गोज अवे, then you need to inform me immediately, right, so that I can correct from my end, because the moment let's say microphone है उसका, cordless microphone, उसका एक बटन प्रेस होगा तो म्यूट हो जाएगा, तो I won't be knowing कि it is muted, you know, but you can let me know that it is muted and I can correct it, you know. Okay, let me work it out, it is not a big difficult thing at all। आप शायद थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको दिखेगा इसमें क्या हो रहा है। हाँ बताएं। बी, बी, B for Bombay, B for Bombay, कि B for Bombay कि D for Delhi? बेटा बॉम्बे या दिल्ली बोली क्यों? B और D एक ही जैसा साउंड करता है। बॉम्बे, नो। देखिए बेटा, इसमें आपको कोई जीपीपी दिख नहीं रही है, आपको लग रहा है ना? ना, अब सबसे पहली बात नोटिस करिए कितने टर्म्स का सम निकालना है। इसमें n टर्म्स का सम निकालना है, n टर्म्स का सम निकालना है। आइए देखिए, पर यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करेंगे तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा कि अरे सर हमने ये लिया क्यों नहीं, हमने किया क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं किया, राइट। देखिए ये सीरीज जो दी है मेरे को, दी हुई है 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8। आप शायद कुछ नोटिस नहीं कर रहे हैं, कुछ नोटिस करते तो बहुत ही, मतलब ऑब्जर्व करते तो बहुत आसानी से ये हो जाता। अप टू nth टर्म, कितना? अप टू tn, nth टर्म तक जा रहे हैं हम लोग। आप अगर देखें तो 1/2 को तो मैं लिख सकता हूं, अभी 1/2 को छोड़ दीजिए, चलिए मैं लिखूंगा जो मेरा मन करेगा वो मैं लिखूंगा 1/2 को, उसमें परेशानी ना होइए। पर 3/4 को मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, क्या आप देख सकते हैं? आप अच्छा एक चीज ये नोटिस नहीं कर पा रहे हैं क्या आप लोग, कि ये सारे चीजों में, ये देखिए क्या क्या देखना पड़ेगा आपको, इन सारे चीजों में न्यूमरेटर एक कम है डिनोमिनेटर से, ये नोट कर पा रहे हैं कि नहीं आप लोग ना? ये एक बहुत ही बड़ी हिंट है इस क्वेश्चन को करने की। तो 3/4 को मैं लिख सकता हूं क्या? 3/4 को मैं लिख सकता हूं 1 - 1/4। बोलिए हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा, 7/8 को मैं लिख सकता हूं 1 - 1/8, तभी तो मैंने कहा था एक कम है। 15/16 को मैं लिख सकता हूं 1 - 1/16। अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं 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 नहीं, अगर आप 1 माइनस लिखिए तो जो सीरीज तैयार होती है वो एक जीपी होती है। देखिए 1/4, 1/8, 1/16, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? 1/4 से 1/8 जाने में हमने क्या किया? 1/2 मल्टीप्लाई किया, फिर 1/2 मल्टीप्लाई किया, फिर 1/2, तो है जीपी पर थोड़ा सा ट्विस्ट करने के बाद तो मैंने काम किया। 1/2 को लिखा 1 - 1/2, जबरदस्ती 1/2 को लिखा 1 - 1/2। 3/4 को लिखा 1 - 1/4। कैन यू ऑल सी दैट? 7/8 को लिखा 1 - 1/8, यू नो। 15/16 को लिखा 1 - 1/16, श्योर और नॉट? और करते करते जो लास्ट टर्म क्या होगा आप खुद बताए मेरे को, लास्ट टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म क्योंकि nth टर्म है, और फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा है? बोलिए 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 बोलिए, फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा है? फर्स्ट टर्म में 1/2 है, सेकंड टर्म में 1/2 है, थर्ड टर्म में 1/2 है, तो इस टर्म में होगा 1 - 1/2 होगा कि नहीं होगा? बोलिए होगा कि नहीं होगा? ऑल ऑफ यू गेट द पॉइंट? होगा कि नहीं होगा? ऑल ऑफ यू गेट द पॉइंट? देखिए बेटा समझने की कोशिश करिए, जो पहला टर्म था, जब मैं उसको 1 - 1/2 लिखा, तो क्या इसको मैं 1/2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बोलिए। अच्छा चलिए मैं ऐसे लिखता हूं, नेक्स्ट में लिख के फिर मैं उसको मिटा दूंगा, राइट। यहां पे इसको 1 - 1/2 लिख सकता हूं कि नहीं? 2 raised to the power 1, you know, 2 raised to the power 1, that is what I call it deliberately
इसको मैं 1 - 1/2 रेस पावर 2 लिख सकता हूँ, बोलिए हाँ है ना। इसको मैं 1 - 1/2 रेस पावर 3 लिख सकता हूँ। इसको मैं 1 - 1/2 रेस पावर 4 लिख सकता हूँ। तो बताइए फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म T1, ये T1 है, ये T1 जो है वो 1 - 2 रेस पावर 1 है। T2 जो है वो क्या है, 1 - 2 रेस पावर 2 है। T3 जो है वो क्या है, बोलिए 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 बोलिए, T3 3 है। तो Tn जो होगा 1 - 1/2 रेस पावर n होगा कि नहीं होगा? यस सर। सबको समझ में आ गया? केवल एक ही ना बोले, बोलिए सब लोग कंफर्म करिए हाँ या ना। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। हैविंग सेड दैट, हैविंग सेड दैट, मैं अब देखिए मैं कैसे जीपी पाता हूं। अब कितने आसानी से मैंने ये 1 1 1 1 1 1 सबको एक साथ लिख लिया। ऑल दीज 1 1 1 1 1 सबको कितनी बार 1 1 है, n बार। तो ये क्या हो गया बेटा, n अलग हो गया, माइनस कॉमन लिया। इनसाइड द ब्रैकेट आई गेट 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 डाउन टू 1/2 रेस पर n। डोंट आई, डोंट आई, डोंट आई? कंफर्म कर लीजिए, अच्छे से सोच लीजिए हाँ या ना, बोलिए। अब भैया एक बात को अच्छे से आप नोटिस कर लीजिए। क्या नोटिस कर लीजिए, ये अपने आप में एक जीपी है। वो जीपी का पहला टर्म क्या है, 1/2 है। उस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है, 1/2 है। बोलिए हाँ या ना, देख लीजिए। ए आर स्क्वायर है कि नहीं, और कितने टर्म है बेटा, एन टर्म्स है। अब सम लिख लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेट मी रब इट ऑफ। इट इज अ जीपी, तो इट इज अ जीपी यहाँ पे लिखता हूँ बल्कि मैं, इट इज अ जीपी। ये क्या है, एक अपने आप में जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 1/2 और जिसका कॉमन रेशियो है 1/2, और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, एन है। तो क्या सम हो जाएगा, ये एन तो आ ही जाएगा। और जीपी का सम क्या होता है बेटा, नो दैट ए 1 - r रेस पर n अपॉन 1 - r। बोलिए होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता? यस सर। तो दैट इज व्हाट आई एम गोना यूज हियर। तो जीपी का सम जो होता है, लेट मी राइट द फॉर्मूला विद सम अदर कलर, मे बी ब्लू कलर। एस इज इक्वल टू ए 1 - r रेस पर n अपॉन 1 - r। तो यहाँ पे मैंने लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्या है, बोलिए ए क्या है, 1/2। तो 1/2 आउटसाइड, बोलिए अग्री और नॉट, 1/2 आउटसाइड राइट इंटू 1 - 1 बाई r रेस पर n, r रेस पर 1/2 रेस पर n हो जाएगा कि नहीं, बोलिए हाँ है ना, अपॉन 1 - r 1/2। एम आई करेक्ट? कोई डाउट किसी को, कोई शक? नॉट एट ऑल आई गेस, नो डाउट एट ऑल आई गेस। अब देखिए बेटा मजा, ये भी डिनोमिनेटर भी क्या हो गया, ये हो गया 1/2 1 - 1/2 रेस पर n अपॉन 1/2। बोलिए हाँ है ना। अरे भाई 1 - 1/2 इज 1/2 और नॉट ना। तो यस सर। तो बेटा ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 1/2 ये 1/2 कैंसिल हो गया, एंड आई एम लेफ्ट आउट विद व्हाट। ओके, आई एम सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये n तो लिखिए, n माइनस, अरे भाई n माइनस, हाँ हाँ है ना, ये ना ये भूल रहे थे, n माइनस, ठीक। ओके, तो ये क्या हो गया बेटा, n-1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अग्री और नॉट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/2 रेस पर n विल बिकम व्हाट, प्लस 2 रेस पर माइनस n। तो आई थिंक n-1 प्लस 2 रेस पर -1, तो C इज द करेक्ट आंसर। इज C करेक्ट आंसर और नॉट? यस सर। Okay, can we proceed to the next question? यस सर। Okay, let me proceed to the next question.
Suppose A, B, C are in arithmetic progression and A square, B square, C square are in geometric progression. If A is weaker than B is weaker than C and A plus B plus C is equal to 3 by 2, then the value of A is. Yes. It's a nice one. Yes.
यस देखिए सबसे पहली बात तो ये है, इट इज सो कन्वीनियंट टू गेट माई बी, विद पैसेज ऑफ टाइम विल डेवलप द एक्सपीरियंस। देखिए सबसे पहली बात ये कि आपका ए बी सी आर इन ए पी है ना, मीनिंग देयर बाई कि बी माइनस ए जो होगा कॉमन डिफरेंस वही सी माइनस बी होगा। बोलिए बी और ए का डिफरेंस है ना, बी और ए का डिफरेंस जो होगा वही सी और बी का डिफरेंस होगा। कहने का मतलब है कि इफ आई ट्रांसफर इट वन पर्टिकुलर साइड टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब a प्लस बी प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूं, बोलिए a प्लस बी प्लस सी विच इज ग्रांटेड टू बी 3/2, कैन आई राइट इट एज, यहां पे मैंने a प्लस सी को 2b प्लग कर दिया, तो a प्लस सी को मैंने 2b कर दिया, तो ये 3b हो जाएगा कि नहीं, ये 3/2। बोलिए अग्री और नॉट, सबको समझ में आ गया ना ना, तो इसलिए b क्या आ गया बेटा, b आ गया 1/2। दैट्स व्हाई आई सेड कि फाइंडिंग b इज वेरी इजी। तीनों को सम दिया तो मिडिल टर्म तो 1/3 होगा ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, ये तो मतलब इट इज अ केक वॉक। अब मेरी जद्दोजहद शुरू होती है और काफी बड़ी जद्दोजहद शुरू होती है, छोटी मोटी नहीं। इट वाज आस्क्ड इन सम ईयर आईटी एडवांस, आई डोंट नो विच ईयर, बट किसी साल पूछा गया था। अब अगर ध्यान दें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जीपी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जीपी, दैट्स वाई a square b square c square are in GP। तो इनका रेशियो कॉमन होगा सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग टर्म का, मीनिंग देयर बाई इंप्लाइज व्हाट, इंप्लाइज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कॉमन रेशियो हो गया कि नहीं, दिस अपॉन दिस, बोलिए हाँ या ना, विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बोलिए हाँ या ना, सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, आई एम सो सॉरी, सी स्क्वायर अपॉन b square, am I correct? Implies that b raised power 4 is equal to a square c square. Sure or not? All of you get the point? Yes, All of you get it very correctly, nicely, मतलब कोई परेशानी की बात नहीं है। That's why b square should be equal to plus minus ac. In other words, I can write, हाँ जी श्योर, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने में बेटा हमेशा प्लस माइनस लगा देते हैं। आपको एक चीज बता दें, अगर किसी ने कहा एक्स स्क्वायर इज इक्वल 16 और किसी ने लिखा इसका मतलब कि एक्स इज इक्वल 4, दैट मींस इट इज इनकम्प्लीट। भाई इट कैन बी प्लस माइनस 4, चाहे प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, दोनों हो सकता है, तो इसलिए आपको प्लस माइनस दोनों लगाना है। राइटिंग अदर वे अराउंड इट रीड्स एज ए सी इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए सी इज इक्वल प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब प्लस माइनस 1/4। एम आई करेक्ट और नॉट, भाई बी स्क्वायर इज 1/4 और नॉट, तो AC या तो प्लस 1/4 होगा या तो माइनस 1/4 होगा। अब क्या होगा मैं नहीं जानता, अब मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा, डिलेमा है यही, तो इसीलिए कह रहे हैं द क्वेश्चन इज बिट टेक्निकल, बिट टेक्निकल। अब देखिए, अब बिल्कुल नए तरीके से ये बताइए मेरा a प्लस सी किसके बराबर है, 2b के, 2b कितना है 1, 2b इज 1 और नॉट। अब मैंने केस 1 लिया, केस वन लिया कि अगर मैं AC को मैंने अगर प्लस 1/4 लिया, ये केस 1 है मेरा, ये केस 1, क्योंकि मेरे को दोनों कंसीडर करने पड़ेंगे, जिससे मेरा केस 1 AC को मैं प्लस 1/4 लिया, तो आप खुद बताइए मेरे को कि a माइनस सी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस सी ए होता है a प्लस सी होल स्क्वायर, बोलिए। बहुत सही आंसर, -4AC, श्योर और नॉट, a प्लस सी का होल स्क्वायर इज 1 आफ्टर ऑल, और -4AC इज -4 इंटू 1/4, दैट इज 0, मीनिंग दैट यहां से क्या आया, a इज इक्वल सी आया। क्या a इज इक्वल सी अलाउड है? आंसर इज नो, बिकॉज यहां पे आप ये देखिए A is weaker than B is weaker than C, A C से स्ट्रिक्टली छोटा है, इक्वालिटी का साइन भी नहीं लगा यहाँ पे, आप देख रहे हैं मेरा पेन का कर्सर, क्योंकि दोनों बराबर अलाउड नहीं है, तो ये मेरा केस क्या हो गया, ये मेरा केस रूल आउट हो गया, ये मेरा केस रूल आउट हो गया, तो केस 1 इज क्रॉस्ड आउट।
अब केस 2 पे मैं जाता हूं. आई गो टू केस 2. केस 2 मैंने लिया ए सी इज इक्वल टू -1/4 और ए प्लस सी तो मेरा है ही है. ए प्लस सी क्या है मेरा 1 है, वो तो सभी को पता है. अब मैंने यहां पे लिखा ए माइनस सी होल स्क्वायर. ए माइनस सी होल स्क्वायर इज ए प्लस सी होल स्क्वायर -4ac. एम आई करेक्ट और नॉट? श्योर और नॉट? तो विच इज गोइंग टू बी ए प्लस सी होल स्क्वायर इज व्हाट? 1 -4ac. तो -4 into -1/4, so that is 2. Oh, thanks God it survives. Thanks God it survives. That means case 1 is correct. मतलब AC -1/4 होगा. सबको समझ में आ गया कि नहीं इस बात को? अब मैंने इसको सॉल्व किया. तो a माइनस तो लिखा a माइनस सी इज इक्वल टू वॉट? a माइनस सी इज इक्वल प्लस माइनस √2. एम आई करेक्ट और नॉट? अब सवाल ये उठता है कि प्लस साइन लूं कि माइनस साइन लूं. आप में तो कॉमन सेंस लगा के कोई बोले प्लस साइन लूं कि माइनस साइन लूं. गलत बात बेटा, गलत बात. द रीजन इज नहीं 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 नहीं, स्क्वायर में तो प्लस वही है 2. बात ये नहीं है. आप केवल देखिए आप मिस्टेक, इसीलिए हमने जानबूझ के, मेरा मन करता शुरुआत से मैं सी माइनस ए भी लेके चलता. मैंने जानबूझ के लिया कि जिससे आप मिस्टेक करें मैं आपको कॉशन करूं. आपको मैं ये हाईलाइट करता हूं. कितना बड़ा करूं कि हाईलाइट करे? ये क्या लिखा है आप ये बोलिए. ये क्या लिखा है? ये लिखा है ए माइनस सी. और ए क्या है सी से? छोटा. तो ए माइनस सी नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? बोलिए. नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? छोटी चीज से बड़ी चीज सब्ट्रैक्ट होगी तो नेगेटिव होगा कि बड़ा होगा? पॉजिटिव होगा. Now you understand the point. That's why minus sign is ruled out, and I take only the negative. Plus sign is ruled out. I take only the negative root, that is √2. That is I call equation number 2. अब मेरे को a प्लस सी पता है और a माइनस सी पता है. अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं, if I add both equations, so what I am going to get? If I add equation 1 and equation 2, equation 1 प्लस इक्वेशन 2 को मैं ऐड कर दूं, बोलिए तो क्या होगा? इक्वेशन 1 ये है मेरा, ध्यान दीजिएगा. इक्वेशन 1 ये है. डोंट मेक मिस्टेक अबाउट इट. इक्वेशन 1 इज दिस, यू नो. इक्वेशन 2 इज दिस, यू नो. इक्वेशन 1 इज दिस, इक्वेशन 2 इज दिस. कैन यू ऑल सी दैट? लेट मी make it smaller. Looks very strange. That's why let me put a small box. Equation 1 is this, you know. Equation 2 is this. दोनों को ऐड कर दिया. दोनों को ऐड किया. LHS में a माइनस सी और a प्लस सी ऐड अप होकर क्या होंगे? 2a. बोलिए. 2a विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 प्लस 1 माइनस √2. तो इसलिए a क्या हो गया? a हो गया 1/2 माइनस 1/√2. एम आई करेक्ट और नॉट? सबको समझ में आ गया? It was slightly technical question. I knew it is slightly technical question. So answer is D. D is the correct answer. No. At least I can think of right now. हमको यही समझ में आ रहा है. अब maybe can you see that why this case is crossed out? Why this case is crossed out? Because A और C को इसने equal दे दिया था. That's why case 1 is crossed out. Am I correct or not? And case 2 is absolutely correct. हाँ जी बोले. a प्लस सी को होल स्क्वायर करने से कोई फायदा नहीं हो. तो ऑलरेडी मेरे पास था. मैं a माइनस सी इसलिए कर रहा था क्योंकि a प्लस सी a माइनस सी दो चीज मिलेगा तभी मैं निकाल पाऊंगा. a प्लस सी तो मेरे पास बहुत पहले था. यहीं पे मिल गया था a प्लस सी. आई गॉट a प्लस सी हियर ओनली. बिना कुछ किए ही a प्लस सी मेरे को मिल गया था. कैन वी प्रोसीड? कैन वी? ओके. बहुत छोटा क्वेश्चन. वेरी फास्ट यू नीड टू डू इट.
बहुत छोटा क्वेश्चन, अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन. It is a very small question. Who? Very correct, Siddhika. Yes, it is correct. Very correct. And it is a very small question. I expected the answers very fast and सही बात है, बिल्कुल सही. देखिए, आपको पता है ये बात को, बहुत अच्छे से पता है, ये कंडीशन पता है आपको, और आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरी इन्फानाइट सीरीज का एग्जिस्टेंस तभी होता है जब आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है. तो ये बात क्लियर है आपको? ये बात क्लियर है? नहीं तो इन्फानाइट सीरीज की कल्पना भी आप नहीं कर सकते. अग्री? राइट. तो दैट इज वाई अगर आप देखें इस क्वेश्चन में तो ये इसी बात को पूछा गया है कि एन इन्फानाइट जीपी हैज द फर्स्ट टर्म x एंड द सम 5, देन x बिलोंग्स टू. तो इन्फानाइट जीपी का फर्स्ट टर्म जो है a जो है वो कितना है, इन लोगों ने लिखा है a जो है वो है x, और सम जो है वो होता है s इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r. Am I correct or not? Which is given to be 5. Agree? All of you understand this? Right. Having said that, फर्स्ट टर्म क्योंकि x है तो मेरा आ गया x अपॉन, बोलिए क्या आ गया, x अपॉन 1 माइनस r इज इक्वल टू 5. कोई शक? किसी को डाउट? सॉल्व कर लिया इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आया 1 माइनस r इज इक्वल टू x by 5, implies that r is 1 minus x by 5. Agree or not? That is, ऐसे लिख लीजिए, और कैन राइट इट एज 5 माइनस एक्स अपॉन 5. एम आई करेक्ट? कोई मिस्टेक किया बेटा तो बता दीजिए, क्योंकि आई मे मेक मिस्टेक, आई एम कन्फ्यूजिंग दैट, राइट. सो इफ आई मेक अ मिस्टेक इन क्रॉस मल्टीप्लाइंग और समथिंग तो यू शुड. पर एक बात समझिए मेरी बात को, द कॉमन रेशियो हैज टू लाई बिटवीन -1 एंड 1, नहीं तो इन्फाइनाइट जीपी का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, सवाल ही नहीं उठता. तो इस कंडीशन को अगर मैं ओबे करूं तो आर मेरा इतना आया है, तो इसलिए 5 माइनस एक्स अपॉन 5 इज ग्रेटर देन -1 इज वीकर देन 1. मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट इंप्लाइज दैट 5 माइनस एक्स. एक एक पार्ट सॉल्व करिए, एक एक पार्ट, नहीं तो आप लोग मिस्टेक कर जाएंगे. अभी इनइक्वालिटी चैप्टर अलग से पढ़ाएंगे तब आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा. पहले मैंने ये पार्ट सॉल्व किया, फिर मैंने ये पार्ट सॉल्व किया, फिर मैं ये पार्ट सॉल्व करूंगा. श्योर और नॉट? तो एक एक पार्ट करेंगे, राइट. तो एलएचएस वाला पार्ट पहले सॉल्व किया, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व किया. क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है 5 माइनस एक्स अपॉन 5 इज ग्रेटर देन, या तो ऐसे लिखिए जैसे लिखा था, -1 इज वीकर देन 5 माइनस एक्स अपॉन 5. एम आई करेक्ट और नॉट? श्योर. 5 से मल्टीप्लाई किया, -5 इज वीकर देन 5 माइनस एक्स. एम आई करेक्ट? एक्स को इधर लाया तो एक्स इज वीकर देन, बोलिए 5 इधर गया तो 10. तो एक पार्ट तो ये आ गया. श्योर और नॉट? सबको समझ में आ गया? राइट. एक मिनट रुकिए, तो मैं स्पेस क्रिएट कर लूं. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. ओके, सो दैट आई डू इट इन द विजिबल पार्ट ओनली. एक पार्ट मैंने यहां सॉल्व कर लिया, ठीक है ना.
दूसरा पार्ट मैं अब यहां सॉल्व करूंगा। दूसरा पार्ट क्या हो गया? दूसरा पार्ट जो हो गया वो ये ब्लू पार्ट हो गया। इसको ब्लू से लिख लीजिए, किसी से भी लिख लीजिए। ये पार्ट ये पार्ट क्या हो गया बेटा? ये पार्ट अगर इनइक्वालिटी का लेंगे हम तो 1 इज ग्रेटर देन 1 बड़ा है कि नहीं? 1 इज ग्रेटर देन 5 माइनस एक्स अपॉन 5। 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 इज ग्रेटर देन 5 माइनस एक्स, तो x को इधर लाए तो x इज ग्रेटर देन 0। तो x को 0 से बड़ा होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए। तो दोनों को क्लब किया तो आई गेट द कंबाइंड आंसर 0 इज वीकर देन x इज वीकर देन 10। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? कोई डाउट किसी को? नो डाउट अबाउट दिस एट ऑल। तो करेक्ट आंसर इट इज फ्रॉम 0 to 10. So I think we have done away with this. Today's lecture I'm signing off by, I'm going to the interface first. First I'll share the screen and then, first I'll stop sharing the screen and then, okay. So this is where we are, So we have picked up GP today and taken few examples based upon the nth term and addition of series. One thing. The second issue is that understand that unlike AP, the GP can be extended up to infinity provided the common ratio is lying between -1 to 1. That is what. Otherwise, there is no existence of infinite GP at all. Appreciate that. So I am ending the lecture here. I'll be publishing the lecture somewhere in the night, maybe 11, 12 or so, right? And I'll paste the link in the coaching's application, so you can get to see that, revise that, or you can suggest to new friends if they are interested in being part of that. So I am signing off now. So goodbye. हाँ बताइए कार्तिकेय. I will let me reach a significant stage in coverage, then only I can assign, right? So I am signing off now. But thank you.